It's Vinod Minas with chemistry classes. We are going to discuss today about the laws of chemical combinations. ये laws वो laws हैं जो बताते हैं कि कोई भी chemical reaction किस तरीके से proceed करेगा, या फिर यूँ कहें कि कैसे one kind of matter will be converted into other kind of matter. We are going to discuss these laws one by one. These are the 5 laws: law of mass conservation, law of constant composition, law of multiple proportion, law of reciprocal proportions, and Gay-Lussac's law of gaseous volumes. The first law is law of mass conservation. It is given by Antoine Laurent Lavoisier in 1774, and the statement is, during a physical and chemical change, the total mass of products is always equals to the total mass of reactants. Or you can say, during a physical or chemical change, mass is neither created nor destroyed. So, for an example, carbon combines with oxygen so as to form carbon dioxide. ये एक केमिकल चेंज लिया है मैंने. 12 ग्राम ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता ही 12 है, कंबाइंस विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टू 32. तो हम कहेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन सो एज टू गिव अस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. So the mass of reactants is 12 plus 32, 44, and the mass of products is also equals to 44 grams. We can take some more examples also. For example, during respiration, the glucose present in our body combines with oxygen so as to form carbon dioxide and water. Now, 180 gram of glucose combines with 32 into 6, because atomic molecular mass of oxygen is 32, so 32 into 6 is going to be your 192 gram. So we can say 180 gram of glucose combines with 192 gram of oxygen and gives the molecular mass of carbon dioxide is 44, so 44 into 6 will be giving me 264. So 264 grams of CO2 is obtained. At the same time, 18 6za, the molecular mass of water is 18 into 6. So 18 6za will be having 108. So 108 grams of water will be formed. So we can say glucose के 180 grams combine होते हैं ऑक्सीजन के 192 grams के साथ, तो बन जाता है 264 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड and 108 grams of water. So the mass of products, which is 264 plus 108, is going to be your 372. And when we add the mass of reactants, 180 plus 192, once again we are having 372. So we can say the mass of products is always equals to the mass of reactants during a physical or chemical change. For example, if I take 1 kg of ice and melt it, I'll be getting 1 kg of water. This is a physical change. So whether it is a physical change or a chemical change, the mass of reactants is always equals to the mass of products. So we study the second law. The second law is law of constant composition. It is also called as law of definite proportions. It is given by Joseph Proust or Joseph Louis Proust in 1799. The statement of the law is, for a particular chemical compound, a chemical compound is made up of certain fixed elements which are combined with each other in a definite ratio or proportion by mass. That means कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को लेंगे तो उस कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट्स रहेंगे और उन सेम एलिमेंट्स के बीच में जो रेशियो है वो फिक्स है, वो वही रेशियो रहेगा बाय मास. सो
The ratio or proportion is by mass, it is not by volume. So ratio and proportion is not by volume, not by atomic ratios. So the ratio is clearly by mass only. So we can say जब भी कभी आपके कुछ एलिमेंट्स कंबाइन होकर के एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड में उन एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा. फॉर एग्जांपल लेट मी टेक कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 and whereas that of is oxygen is 16. 16 twos are 32. So 12 ratio 32 which is roughly 3 ratio 8. सिंप्लीफाई करने पे हमें 3 रेशियो 8 मिल गया. सो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये रेशियो हमेशा 3 रेशियो 8 ही रहेगा. रेशियो बाय मास है, ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए. ऐसा ही हाल कुछ वाटर में रहेगा. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के केस में हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो 2 into 1 is 2, रेशियो 16, 1 रेशियो 8. दैट मीन्स वाटर कहीं भी हो, वर्ल्ड के यूनिवर्स के किसी भी कोने में अगर वाटर है तो वाटर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होगा और उस वाटर में हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में 1 रेशियो 8 रहेगा बाय मास. नाउ देयर इज द लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ ऑल्सो. द लिमिटेशन इज that the law is obeyed by all the time but not in the cases of isotopes. For example, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने वो आइसोटोप लिया है जिसमें कि एटॉमिक मास 14 होता है. कार्बन हैज 2 isotopes, one is having atomic mass of 12 and the other is atomic mass of 14. अगर मैंने कार्बन का आइसोटोप ये वाला लिया है जो कि रेडियो एक्टिव है जिसका एटॉमिक मास 14 होता है, उस समय कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो आएगा वो है 14 रेशियो 32. In CO2, the ratio will be changed 14 ratio 32. That means on simplification, it is going to be 7 ratio 16, which by no means is 3 ratio 8. That means the law is obeyed always except for the case when we use isotopes of an element. The third law is law of multiple proportions. The law was given by John Dalton in 1803. And the statement is, when two elements combine with each other to form 2 or more compounds, the masses of one element that combines with the fixed mass of the other possess a simple whole number ratio with each other. That means अगर आपके 2 elements A and B एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, कम से कम 2 कंपाउंड जरूर बनाते हैं. ये लॉ एप्लीकेबल तब होता है जब 2 एलिमेंट्स मिलकर 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड्स बनाएं. फॉर एग्जांपल, कार्बन एंड हाइड्रोजन मेक्स CH4, कार्बन एंड हाइड्रोजन आल्सो मेक्स C2H6, मीथेन, इथेन, दे आल्सो मेक C3H8 which is propane and so on. सो कार्बन और हाइड्रोजन जिस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, ऐसे ही मैंने ये माना कि ए और बी एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं और वो कम से कम 2 कंपाउंड जरूर बना रहे हैं. लेट मी सपोज द फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म्ड इज ABX एंड द सेकंड कंपाउंड फॉर्म्ड इज ABY. द लॉ सेज कि जब 2 एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होकर 2 या इससे भी ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो इन सभी कंपाउंड्स में किसी एक एलिमेंट के, मान लेते हैं ए के फिक्स मास के साथ बी के जो मासेस कंबाइन होंगे उन मासेस में होगा, बी के मासेस में, क्योंकि ए का मास तो फिक्स है, तो ए के फिक्स मास के साथ बी के जो मासेस कंबाइन होंगे बी के उन मासेस में होगा एक सिंपल होल नंबर रेशियो. मतलब बी के मासेस में यहां पर अगर हम रेशियो निकालें तो वो आएगा x रेशियो y. फॉर एग्जाम्पल, let me take carbon and oxygen. Carbon and oxygen makes carbon monoxide and these also make, carbon and oxygen also makes carbon dioxide. अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स में कार्बन के मास को फिक्स कर दूं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन ऑक्सीजन हेयर, कार्बन ऑक्सीजन हेयर, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 16. The atomic mass of carbon is 12 and that of oxygen is 16, लेकिन
ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं, तो 16 2 आई विल बी राइटिंग 32। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर कार्बन का मास फिक्स है, इन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट कार्बन का मास फिक्स है, तो दूसरे एलिमेंट के मासेस में रेशियो देखना है, वो है 16:32। द रेशियो इज सीन बिटवीन द मासेस ऑफ सेम एलिमेंट। तो ऑक्सीजन के मासेस में मैंने रेशियो देखा, वो आ रहा है 16:32, विच ऑन सिंप्लीफिकेशन इज 1:2। लाइकवाइज अगर मैं इन दोनों ही कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के मास को फिक्स करता हूं, फॉर एग्जांपल कार्बन एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16, यहां पे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का यहां पे एटॉमिक मास 16 ही है, लेकिन 16 2 32। So if I am fixing the mass of oxygen here, that means 16 2 32 अगर मैं करता हूं, तो obviously I have to multiply this 12 with 2 also, so as to get me 24। अब मैंने कार्बन का क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया है? बेसिकली CO मैंने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया है, so as to obtain 2 atoms of oxygen, क्योंकि CO2 में ऑक्सीजन के 2 atoms थे। So what I observed, when I multiplied CO with 2, the atomic mass of oxygen became 16 2 32, not the atomic mass, but atomic mass into 2 became 32, and likewise the atomic mass of carbon multiplied with 2 gives me 24। The ratio between, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन के मासेस को इन दोनों ही कंपाउंड में फिक्स कर रखा है, तो रेशियो बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन के मासेस में जो रेशियो मुझे नजर आ रहा है, कार्बन के मासेस में जो मुझे रेशियो नजर आ रहा है, दैट इज 24:12। नाउ इन दिस केस द मास ऑफ ऑक्सीजन इज फिक्स्ड and I am looking at the ratio between masses of carbon, and the ratios are 24:12, which is 2:1. So this is your one case. Likewise, I can take many cases. For example, nitrogen and oxygen form N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5 and so on। इन सभी कंपाउंड्स में मैंने नाइट्रोजन के मास को फिक्स किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 14 2 28, ऑक्सीजन का एक ही एटम है 16, NO नाइट्रोजन का एक ही एटम है, एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है 16, N2O3 नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, 14 2 28, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, एटॉमिक मास 16 है ऑक्सीजन का, 16 3 48। NO2 नाइट्रोजन के लिए 14 क्योंकि एक ही एटम है, ऑक्सीजन के लिए 16 2 32। लाइकवाइज फॉर N2O5 आई एम राइटिंग हियर 28 क्यों लिख रहा हूं नाइट्रोजन के लिए? बिकॉज 2 एटम्स हैं, 14 2 28 एंड 16 5 इट इज गोइंग टू बी योर 80। नाउ अगर मैं इन सभी में नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दूं, इफ आई एम फिक्सिंग द मास ऑफ नाइट्रोजन 14 2 तो 28 हो जाता है सभी में। तो ऑब्वियसली आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 16 विद 2 so as to get me 32। I have to multiply this 32 with 2 so as to get me 64। Now look at the ratio between the masses of oxygen। क्योंकि मैंने इन सभी कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के मास को कांस्टेंट कर दिया है, नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया है। ये लॉ भी कहता है कि अगर आपके 2 एलिमेंट्स मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उन सभी कंपाउंड्स में किसी एक एलिमेंट के नाइट्रोजन के फिक्स मास के साथ दूसरे एलिमेंट ऑक्सीजन के जो मासेस कंबाइन होंगे, उनमें होना चाहिए सिंपल होल नंबर रेशियो। सो नाइट्रोजन के मासेस फिक्स हैं 28 28 28 28 एंड 28, बट ऑक्सीजन की बात करें तो रेशियो आएगा 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 64 रेशियो 80, which upon simplification will be 1 ratio 2 ratio 3 ratio 4 ratio 5। So this is the example of your law of multiple proportions. Next law is law of reciprocal proportions. It was given by Richter in 1792. The law states that when two elements A and B combine separately with fixed mass of a third element C, the ratio by mass between these two elements is either equals to or some multiple of the proportions of the masses in which A and B combine directly with each other। यानी कि A और B ये आपके दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं,
ये किसी थर्ड एलिमेंट C के फिक्स मास के साथ कंबाइन होते हैं। A एंड C के कॉम्बिनेशन से बनता है AC, B एंड C के कॉम्बिनेशन से बनता है BC। ये लॉ कहता है कि A और B अगर किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से जुड़ता है तो उस समय A और B के बीच में जो रेशियो आता है वो रेशियो एग्जैक्टली उतना ही होता है अगर A और B एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जुड़ जाएं, या फिर वो रेशियो उतना होता है कि अगर हम इस रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो रेशियो मिल जाए। लेट मी टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन इट। कार्बन and oxygen combine with hydrogen separately so as to form CH4 and H2O। कार्बन और ऑक्सीजन को मैंने हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइन करवाना है। सो अगर मैं CH4 की बात करूं, इसमें कार्बन का एक एटम है, एटॉमिक मास 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन आर कंबाइनिंग विद 4 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। यहां पर अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के 16 पार्ट्स के साथ। दैट मीन्स अगर मैं हाइड्रोजन का मास इन दोनों कंपाउंड्स में फिक्स करूं, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 करूं और 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा 32। दैट मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन A एंड B आर कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट C। इस समय इनके बीच में रेशियो आ रहा है 12:32, विच ऑन सिंप्लीफिकेशन इज 3:8। अब अगर यही कार्बन ऑक्सीजन डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ जाए और बनाएं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस समय कार्बन का एटॉमिक मास 12, रेशियो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, लेकिन एटम्स 2 हैं तो 16 2 32 विल बी हैविंग 3:8। सो द लॉ सेज कि अगर आपके दो अलग अलग एलिमेंट्स किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होते हैं तो उस समय इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो रेशियो आता है, थर्ड एलिमेंट से कंबाइन हो रखे हैं, उस समय जो रेशियो आता है या तो वो रेशियो एग्जैक्टली इक्वल होगा जैसे कि सब नजर आ रहा है, या फिर होल नंबर मल्टीपल होगा। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद सल्फर। हाइड्रोजन मेक्स H2S, ऑक्सीजन मेक्स SO2। इस समय अगर मैं बात करूं H2S में, तो हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स इन्वॉल्व हुए, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 एटम्स हैं तो मैंने 2 into 1 करके 2 लिखा। सल्फर का एटॉमिक मास होता 32 है, सो आई हैव रिटन हियर 32। देन SO2, सल्फर का एटॉमिक मास 32 कंबाइनिंग विद 32 पार्ट्स ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 2 एटम्स हैं, 16 2 32। अब इस समय अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो आ रहा है वो है 2:32, विच अपॉन सिंप्लीफिकेशन इज 1:16। यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर एक दूसरे से डायरेक्टली कंबाइन होकर वाटर बनाए तो उस समय रेशियो आता है 1:8, जैसे कि हमने पिछले लॉ में देखा था। तो ये जो आपका 1:8 है, ऑब्वियसली 1:8 इज नॉट इक्वल टू 1:16, लेकिन 1:16 जिसको कि 1/16 लिखा जा सकता है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 1/8। पर अगर इसी 1/16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/8 मिल जाता है। दैट मीन्स द रेशियो ऑब्टेन्ड 1/16 इज अ मल्टीपल ऑफ 1/8। The last law is Gay-Lussac's law of gaseous volumes, given by Gay-Lussac in 1808. ये लॉ कहता है कि when gaseous reactants combine with each other to form gaseous products, they bear a simple whole number ratio with respect to each other. For example, hydrogen gas combines with chlorine gas so as to give me HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये लॉ जो है वो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहा है, वो भी गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट। दैट मीन्स द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ all the reactants and all the products are gaseous.
तो ये लॉ क्या कहता है कि जब भी कभी गैसियस रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर गैसियस प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस समय रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सब के बीच में होता है एक सिंपल होल नंबर रेशियो। सो हाइड्रोजन रेशियो क्लोरीन रेशियो HCl हमारे पास है 1:1:2। द मोलर रेशियो H2 के आगे अगर 1 लिखा है तो 1 मोल ऑफ H2 combines with 1 मोल ऑफ Cl2 to give me 2 moles of HCl. So the ratio by volume is ratio by moles. मोलर रेशियो ही रेशियो बाई वॉल्यूम होता है, तो हम कह सकते हैं 1:1:2। टेक अनदर एग्जांपल, लेट मी सपोज हाइड्रोजन गैस इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन गैस सो दैट वी गेट वाटर वेपर्स, मतलब वाटर जो मिल रहा है गैसेस स्टेट में है, तो इस समय हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन रेशियो वाटर वेपर will be 2:1:2. The only thing which we have to remember is the law is applicable under STP conditions, standard temperature pressure, which is 0 degrees Celsius and 1 atmosphere. Thanks for watching video.